Hello friends, in topic wise exercise question with solution as well as you are getting the full explanation also. In that series now we are going to discuss the question number 3 which is of the solid state. So in that first question which one we are going to discuss, that is the distinguish between ionic solids and the molecular solids. As we know that these two types of the solids are of the crystalline solids. So in that firstly we'll discuss the difference between the ionic solids and molecular solids. So which one is the first difference? See here. If we consider ionic solids, in that main constituent particle or constituent particles which will be there, constituent particle will be ion. Are you getting my point? Constituent particles of the ionic solids, that is the ions. ठीक है, यहाँ पे हो गया फर्स्ट वन. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में firstly we are going to discuss the constituent particle. In that constituent particle will be molecule. Constituent particles are the molecules. तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं आयोनिक सॉलिड्स, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स मतलब एक दूसरे के साथ वो बॉन्डेड रहते हैं, तो उसमें कौन सा बॉन्ड या फिर कौन सा फोर्स रहता है वो वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. इन केस ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड between the particles. While in case of the molecular solids, there is a presence of a London forces or the hydrogen bonding that will be present in between the molecule, in between the particles. This is the second point. As we know that ionic bond will be stronger than the hydrogen bonding, means they have the high melting point and they means molecular solids have the low melting point. Clear to everyone? अगर हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर कंसिडर करते हैं उनको तो जो कुछ भी टाइप है उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स और होते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स. तो उन चारों में से मेटालिक सॉलिड्स आर द गुड कंडक्टर. बट इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, when they are present in their solid state, at that time they are poor conductors. Are you getting my point? Listen carefully. What is the point? Metallic solids are the good conductor, but in case of ionic solids, when they are present in that solid state, they are the poor conductor. But when they are present in their molten state or when they are dissolved in water. Dissolved in water means aqueous solution of this solid. That at that time they are the good conductor. Are you getting my point? What is the point? When ionic solids are present in that solid state, at that time they are the poor conductor. But when they are present in that molten state or when they are in the aqueous solution, at that time they are the good conductor. Are you getting my point? Now see, in case of the molecular solids, we can say that they are the poor conductors. Molecular solids are the poor conductors. Clear? अगर जैसे कि कोवैलेंट सॉलिड्स में देखो, उसमें भी हमने एक एग्जांपल देखते हैं. अगर तो ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, उसमें हमें पता है फुलेरिन का क्या होता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है. ठीक है. अगर हम बोलते हैं कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ द ग्रेफाइट इट इज द गुड कंडक्टर. सो लाइक दैट सम एक्सेप्शनल केसेस विल बी देयर. अगर आयोनिक सॉलिड्स में हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बोल के वो रहेगा सोडियम क्लोराइड CaF2. और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो वहां पे बोल सकते हैं आइस विच इज फ्रॉम द वाटर. लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा है? देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, while molecular solids are soft.
Clear to everyone? Every time we are writing that example point lastly, so if you want, you can bring that last point here also, and that is the example, sodium chloride and calcium fluoride. While in case of molecular solids, we can say that ice and the benzoic acid also. Clear? यहाँ पे हो गया अपना ये क्वेश्चन, ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ एटम्स। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थर्ड क्वेश्चन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, पहले तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक क्यूब। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्यूब। आपको भी ये नोट्स सब कंप्लीट करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे स्टडी कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो FCC के लिए जैसे कि हमें पता है 8 कॉर्नर पे होते हैं 8 पार्टिकल्स, ठीक है। एट द 8 कॉर्नर्स 8 पार्टिकल्स विल बी देयर एंड here there is a faces. How many faces will be there? 6 faces will be there. On each face 1 particle will be there. ठीक है, तो यहाँ पे एक पीछे वाले फेस पे और ये एक आगे वाले फेस पे हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते तो एक जो पार्टिकल है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ये वाली आपको ड्रॉ करके रखनी है फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। आई एम डूइंग दिस वन। सो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं तो एक पार्टिकल शेयर किया जाता है विथ 8 क्यूब्स। मतलब जैसे कि अगर देखो एक पेन शेयर होने वाला है दोनों के साथ, मतलब कितना मिलेगा, हाफ एक को और हाफ दूसरे को। वैसे ही 8 particles, or we can say that 8 particles are at the 8 corners. 8 particles at the 8 corners. Each particle shared by 8 cubes. इसलिए हम क्या करते हैं, देखो, नंबर ऑफ एटम्स, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है हम कॉर्नर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल शेयर होता है 8 क्यूब से, तो उसके लिए एक को कितना शेयर हो जाएगा, 1/8। तो ऐसे ही 8 पार्टिकल्स के लिए आ जाएगा ये नंबर ऑफ एटम 1। क्लियर हो गया? मतलब फिर भी अगर 8 पार्टिकल्स शेयर हुए हैं, 8 पार्टिकल्स आर एट द 8 कॉर्नर, बट टोटली अगर एक यूनिट सेल की कंसीडर करते हैं तो वो कितने आ जाते हैं, 1 आ जाता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं फेसेस, कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ सेकेंड पॉइंट, 6 फेसेस। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, 6 पार्टिकल्स। 6 फेसेस 6 पार्टिकल। ईच particle is shared with 2 क्यूब्स। कितने क्यूब से शेयर होने वाला है, वो 2 क्यूब से शेयर होने वाला है। मतलब एक पार्टिकल अगर 2 क्यूब से शेयर होता है तो एक को रहेगा हाफ, दूसरे को रहेगा हाफ। इसलिए फिर से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब ये नंबर ऑफ एटम्स कौन से रहेंगे, ये रहेंगे फॉर फेसेस। येट वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स फॉर द FCC unit cell, just we have calculated for the corner and now we are calculating for the faces. तो यहाँ पे number of atoms is equal to, एक particle share हो रहा है half of the, so how many particles are there, 6, so total number of atoms will be 3. Now we are going to calculate here number of atoms for the or in the FCC unit cell, that will be 1 plus 3, that is nothing but the 4. क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 में हम कंप्लीट करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। और एक बात यहाँ पे जैसे उन्होंने पूछा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन इज दैट इट इज रिलेटेड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर द FCC यूनिट सेल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सिंपल क्यूबिक एज वेल एज BCC also. So when you are studying exercise question, try to complete simultaneously second or third type of question also. Thank you all of you.